Hi everyone, welcome back to Teaching Learning with Shweta. We are studying about the development of Indian education and we've studied till the Charters Act till our in our previous video lecture. तो Charter Act 1813 और 1833 हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे. अब हम उसके आगे बढ़ेंगे and today's discussion will be about the Macaulay's Minute, the very famous Macaulay's Minute and the downwards filtration theory. तो पहले जरा सा चार्टर्स एक्ट को रिवाइज कर लें. 1813 में जो चार्टर्स एक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि 1 लाख रुपए एजुकेशन की एक्सपेंशन में, इंडियन एजुकेशन की एक्सपेंशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स करेगी रखने के लिए. इतना सम रिजर्व रहेगा. So the East India Company was compelled under by law to set aside 1 lakh rupees for purpose of education in India. The Christian missionaries were allowed to spread education. उनको पूरी परमिशन दे दी थी कि आप अपनी एजुकेशन फैलाइए, चाहे आप रिलीजन के थ्रू फैला रहे हैं या जैसे भी, आपको पूरी छूट है. एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो लैंग्वेज है जिससे एजुकेशन दी जाएगी, वो इंग्लिश भी होगी और इंडियन लैंग्वेजेस भी होगी. जो इंडियन लैंग्वेजेस उस समय चल रही थी, इंडियन लैंग्वेजेस दैट वर being used as medium of instruction were basically Sanskrit, Hindi, Urdu, Persian, Arabic, Telugu, Marathi. All these languages were being used. So they did not object to these languages, but they were keen about introducing English alongside. Then there were two words that we had discussed: learned natives and improvement of literature. Learned natives जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो scholars हैं इंडिया के, उनके लिए ये बोला गया था कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो लिटरेचर है इंडिया की, ओरिजिनल लिटरेचर जो चल रही थी उस समय, उसको इम्प्रूव किया जाएगा. और इम्प्रूव करने का मतलब है थोड़ा सा साइंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा. बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटेन है वो वेस्टर्नाइज था. Because they had this assumption, all this Charter Act, we could see the hidden assumptions. We had discussed about this in the previous video lecture, that there was a hidden assumption in these statements that the British literature was more westernized and scientific in comparison to India, although they did not directly say that till now. Till the Charters Act, they did not directly insult the Indian literature, but then there was a hidden disregard to Indian literature, that there is a need to improvise the Indian education. जरूरत है इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने की और साइंटिफिक उसको बनाने की. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि चार्टर्स एक्ट में ये चीजें बोली थी. चार्टर्स एक्ट की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया था और बहुत सारी डिबेट्स स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि चार्टर एक्ट में इन्होंने सेंटेंसेस तो ये वाले यूज कर दिए थे, बट इनका एक्चुअल मीनिंग नहीं बताया. और इस वजह से 2-3 ग्रुप्स बन गए थे जो आपस में डिबेट्स कर रहे थे. वो हम पढ़ेंगे आगे. सो the Charters Act led to some confusions about what was the actual meaning of learned natives. India के वो learned natives कौन हैं जिनको education दी जाएगी? Who were these learned natives that would be receiving this different system of education that the British government was introducing in India? Who were they? Whether they were Indians or whether they were only people belonging to the East India Company, who were the actual learned natives? And what literature would be given to them? When they say in the Charter Act that literature be improved, revived, what do they actually mean by literature? The Indian literature or the Western literature? तो ये Indian literature होगा कि Western literature होगा, इसके ऊपर विवाद शुरू हो गया. फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा था कि इंग्लिश के साथ इंडियन लैंग्वेजेस भी होंगी, बट इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा बताया नहीं था. और रिवाइविंग लिटरेचर और साइंस एजुकेशन इन इंडिया, रिवाइविंग मतलब दोबारा से उसको अच्छा करने का क्या मतलब था? क्या इसका ये मतलब था कि इंडियन लिटरेचर अच्छा नहीं है? क्या इसका ये मतलब था कि ब्रिटिश लिटरेचर को, वेस्टर्न लिटरेचर को पूरी तरह से आने देना चाहिए? व्हाट वाज द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट वाज द इंटेंट? So there was a lot of confusion about what was the actual meaning or intention behind saying that Indian literature needed a revival, why that was being said. Also, there was a confusion about how these funds would be used. जो funds allocate किए गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि सारे खर्चों के बाद, सारे प्रॉफिट्स के बाद, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, सब कुछ होने के बाद कम से कम 1 लाख रुपए, उससे कम नहीं रखा जाएगा एजुकेशन के लिए. सो दे had made it a rule, a law. The British government had made that a law for East India Company
that you have to set aside 1 lakh rupees for education. But there was no clarity about how this money would be utilized. कितना पैसा किस जगह पे एजुकेशन में लगेगा उसके बारे में कुछ नहीं बताया था. तो ये कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए थे चार्टर्स एक्ट की वजह से. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है. ये चार्टर्स एक्ट का रिजल्ट है एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. क्या है देखते हैं इसको. ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारे डिसीजंस लिए जाते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी के भी डिसीजंस ब्रिटिश पार्लियामेंट ले रहा था ब्रिटेन में बैठकर. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी. तो वहां पर 2 ग्रुप्स बन गए. एक ग्रुप कह रहा था कि जो इंडिया की एजुकेशन रिवाइव करनी है वो इंडिया की ही रहने दो, उसी को इम्प्रूव करो. लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश लाने की जरूरत नहीं है, और जो उनकी ओरिजिनल इंडियन लिटरेचर है उसको ही रहने दो, वेस्टर्नाइज करने की जरूरत नहीं. तो ओरिएंटलिस्ट्स जो थे वो ब्रिटेन में ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उसमें से 2 लोग ऐसे थे, H.H. विल्सन एंड H.T. प्रिंसेप. They were in favor of Indian literature. They were not in favor of bringing about this drastic change in the Indian system of education. They did not want to disturb the continuing Indian system of education, and they also did not want to change the original learning systems of India. The original learning systems of India were basically the Hindi system, the Islamic and the Hindu the centers of learning that were in existence. उसको वो बंद नहीं करना चाहते. They did not want that to close down. They also wanted the local languages to continue. They did not want English to be introduced and replace the original local languages of the country. So these people were called Orientalists. तो इनको Orientalists बोला गया था. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो लोग नहीं थे फेवर में इंग्लिश को लाने में और इंडियन लिटरेचर को वेस्टर्न लिटरेचर से रिप्लेस करने के लिए, उनको कहा गया है ओरिएंटलिस्ट्स. उनमें से जो 2 मेन थे विल्सन और प्रिंसेप थे. ये चाहते थे कि संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन जिनमें एजुकेशन दी जा रही थी वही कंटिन्यू हो, इंग्लिश को नहीं लाया जाए, और लोकल लैंग्वेजेस में जो पढ़ाई हो रही थी वो लोकल लैंग्वेजेस में ही होती रहे, और कोई जरूरत नहीं है वेस्टर्न लर्निंग की. ओरिएंटल लर्निंग मतलब जो इंडिया की ओरिजिनल लर्निंग है वही काफी है. और इंडिया के जो सपोर्टर्स थे उसमें मैंने नीचे नाम लिखे हुए हैं, भंडारकर, जोस गर्सन, डा कन्हा, ये सारे जो हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये इरावती कार्वे, ये कभी कभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि इनमें से कौन से ओरिएंटलिस्ट्स थे. तो इसलिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये रख दिया है. तो ओरिएंटलिस्ट्स में इंडियंस भी आ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी आ रहे थे. सो द ओरिएंटलिस्ट्स कंसिस्टेड ऑफ groups of those people who were in favor of continuation of the original Indian system of education. They did not want to replace the system of education by the Western system of education. And they had both people from East India Company and some Indians. So I've listed the names of those Indians in this paragraph. Then the other group was the Anglicists. जो दूसरा group था वो था Anglicist का. इनमें जो supporters थे चार्ल्स ट्रेवलिन थे और एल्फिंस्टन थे. ये जो 2 लोग थे ये बहुत स्ट्रांगली कह रहे थे कि नहीं, इंडिया की जो लिटरेचर है इट इज नॉट गुड इनफ, इट नीड्स टू बी वेस्टर्नाइज्ड, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इसके फेवर में थे. तो इनका ये कहना था कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है और वेस्टर्नाइज होना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब इंग्लिश को हम रिप्लेस कर दें इंडियन लैंग्वेजेस से, इंग्लिश को हम रिप्लेस कर. एंड दे बिलीव दैट द वेस्ट वाज मॉडर्न. यूरोपियन कंट्रीज का जो भी पढ़ाई थी वो मानते थे कि बहुत मॉडर्न थी और इंडिया की बैकवर्ड थी. तो इंडिया की एजुकेशन को बहुत जरूरत थी मॉडर्न वेस्ट की एजुकेशन से रिप्लेस होना. सो these people, this group of people were strongly in favor of revival or replacement of Indian languages by the Western, by English language, and Indian literature by Western literature. So then, amongst this controversy, while this controversy was going on, जब ये controversy चल रही थी, ये confusion चल रहा था, 2 groups बन गए थे, when these 2 groups were created and this controversy was going on, then comes a very important person, Thomas Babington Macaulay. He came to India as a law member of Council of Governor General. जो Council of Governor General ईस्ट इंडिया कंपनी की थी 1834 में वो आते हैं. And
वो काफी लर्नड थे अपनी कंट्री के लिटरेचर में. ही वॉज ऑल्सो फ्लुएंट ओरेटर, ही वॉज अ गुड स्पीकर, एंड ही वॉज उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने उनको चेयरमैन ऑफ सोसाइटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी बनाया. ये जो महाशय थे, इनके बारे में जब मैं बताऊंगी मकौले मिनट्स क्या था, क्या इन्होंने बोला, क्या इन्होंने किया, उससे पहले for you to understand, I have just put in this what his thoughts here on this slide. He writes, read it carefully. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके समझने के लिए, इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी इंटेंशन क्या थी. वो ये कह रहे हैं कि I have traveled across the length and breadth of India. मैंने इंडिया को पूरी अच्छी तरह से ट्रैवल किया है. I have not seen one person who's a beggar, who's a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of caliber. मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया को मैंने पूरे अच्छी तरह से घूम लिया है. इतना अमीर है इंडिया, यहाँ कोई भिखारी नहीं है, यहाँ पे सबके कैरेक्टर, मॉरल वैल्यूज इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतना टैलेंट है, कैलिबर है लोगों में. आगे पढ़िए आप. I do not think we would ever conquer this country unless we break the backbone of this nation. मतलब इस कंट्री को, अगर इतनी रिच है ये कंट्री, इतनी मॉरल वैल्यूज में साउंड है ये कंट्री, इसको अगर मुझे कॉन्कर करना है तो मुझे इसकी बैकबोन तोड़नी पड़ेगी. ये पॉलिटिक्स वाली चीज है. अब बैकबोन कैसे तोड़ूंगा? Backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैंने इंडिया को इतने अच्छे से देखा है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी कल्चर है, उसका हेरिटेज है, क्योंकि यहाँ पे लोग अमीर हैं, यहाँ पे लोग मॉरल वैल्यूज में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ का कल्चर इतना अच्छा है कि इसको राज करने के लिए हमें चालाकी करनी पड़ेगी, हमें इसकी बैकबोन को तोड़ना पड़ेगा, और इसकी बैकबोन है इसकी कल्चरल हेरिटेज. तो इसके कल्चर को रिप्लेस कर दो, इसकी ओरिजिनल कल्चर को खत्म कर दो और वेस्टर्न कल्चर को लेके आओ, इंग्लिश को लेके आओ, उसको फॉरेन बनाओ. इसलिए नहीं कि इसको मॉडर्न बनाना है इस कंट्री को, ताकि इसकी बैकबोन टूट जाए, एंड देन वी विल बी एबल टू कॉन्कर इट. सो इन दिस पैराग्राफ हिज इंटेंट is very clear. His motive is very clear. He is writing that India is a very strong nation, strong in terms of moral values, strong in terms of religious and cultural heritage. So if this country has to be conquered, the most important thing is to weaken the backbone. And how would he weaken the backbone? By facilitating replacement of the culture, invasion of this culture by a foreign culture. That is the only way this country can be weakened, because we need to, he said that the Britishers need to weaken the backbone. So these were his, I find it very wicked, by the way, but this was his intent. This is a very famous piece that I found somewhere, and I decided to put it on the slide. So with these thoughts, he came to India. Now, what he suggested in Macaulay's Minutes. Now he is giving a clarification of the words literature and learned natives. अब वो बता रहे हैं कि learned natives क्या होने चाहिए, literature क्या होने चाहिए. उनके हिसाब से literature जो आना चाहिए, चार्ल्स ग्रांट ने भी कहा था ये. तो जो चार्टर्स एक्ट में जो ये दो वर्ड यूज हुए हैं, learned natives और literature, इसका उन्होंने मतलब बताया. उन्होंने कहा कोई इंडियन की जरूरत नहीं है. Literature is only English literature, and learned natives are those Indian scholars who have knowledge of Western philosophy, ना कि संस्कृत लिटरेचर. तो इन्होंने बता दिया साफ कि लिटरेचर का मतलब इंग्लिश लिटरेचर जो आएगी एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या एफर्ट हो रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी बनाने का. तो जो एजुकेशन पॉलिसी बनेगी, चार्टर्स एक्ट में जो वर्ड लिखा है लिटरेचर, उसका मतलब है चार्टर्स एक्ट ने कहा था इंडिया की भी लिटरेचर होगी और वेस्टर्न की भी लिटरेचर होगी. लेकिन ये कह रहे हैं, मकौले कह रहे हैं कि नहीं, लिटरेचर मतलब सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर, इंडिया की लिटरेचर नहीं. उनके हिसाब से इंडियन की लिटरेचर बिल्कुल बकवास है. लर्नेड नेटिव्स वो ये कह रहे हैं कि वो उनको एजुकेशन दी जाएगी, उनको देना अच्छा है, जो कि वेस्टर्न जो, और या लर्नेड नेटिव्स जिनको बनाना है, जो स्कॉलर्स जिनको बनाना है, वो कैसे बनेंगे? वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ के, ना कि इंडियन फिलोसफी पढ़ के. So according to him, learned natives would be those people who would be given education of Western philosophy. Maybe they would be made scholars of Western philosophy, not of Indian literature or Sanskrit.
And medium of instruction, he made it very clear. Initially in the Charters Act, it was both Hindi and English. Now he is very clearly saying, no, it is not Persian, it is not Arabic, it is not Sanskrit, not Urdu, it is only English. And he is justifying it. He justified it by saying that the Indians also want it. The Indians also, like Raja Ram Mohan Roy का example लेके वो कहते हैं कि वो भी तो चाह रहे हैं कि India itself believes that India is backward, so they want this. And also English, why English should be introduced according to him? He said that English will help in making good relations with other countries. वो ये कह रहे हैं, क्या उन्होंने justification दी कि English को क्यों लाना चाहिए? क्योंकि एक तो trade बढ़ेगा दूसरी countries से, क्योंकि दूसरी कंट्री की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो इंग्लिश के थ्रू हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, तो हमारा एक्सेस बढ़ेगा, उनकी लिखी हुई किताबों को हम पढ़ पाएंगे अगर हमें इंग्लिश आएगी, तो हमारी सोसाइटी मॉडर्न बनेगी. तो ये बहाने दिए उन्होंने कि क्यों इंग्लिश को लाना चाहिए. इन्होंने ये भी बताया क्योंकि कंफ्यूजन क्या था, पैसे कैसे खर्च होंगे. देयर वाज आल्सो कंफ्यूजन अबाउट हाउ दिस 1 लाख रुपीस विल बी स्पेंड इन एजुकेशन. सो ही गिव अ सॉल्यूशन टू दैट आल्सो. उन्होंने उसका भी सॉल्यूशन क्या दिया कि पैसे सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर और साइंस एजुकेशन पे खर्च होंगे. जो इंडियन स्कूल्स चल रहे हैं जहाँ पे इंडियन चीजों की पढ़ाई हो रही है, इंडियन लिटरेचर की पढ़ाई हो रही है, उनको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे. तो जो चार्टर्स एक्ट में 1 लाख रुपए अलग से रखे गए थे वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को दिए जाएंगे. सो ऑल दैट मनी दैट वाज सेट असाइड इन द चार्टर्स एक्ट was supposed to be spent only on schools and educational institutions that were imparting the English literature and not the Indian school. No Indian schools, no Oriental school was supposed to get any fund from this 1 lakh rupees. He made it very clear. Now this person, Macaulay, he did not believe in superstitions, and he believed that, you know, reading Mahabharata, reading Ramayana, reading a lot of books, he felt that India is full of superstitions. अब ऐसा है कि नहीं है, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, बट मकौले का ऐसा मानना था कि इंडिया का जो लिटरेचर इट इज फुल ऑफ सुपरस्टिशंस एंड रिलीजन को अननेसेसरीली बहुत ग्लोरीफाई किया है. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडियन रिलीजन. ही डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद क्रिश्चियन रिलीजन, Christianity, but he had a problem with Hindu and Islamic and other religions in our country, and he wanted to keep it away from education. And the way to do that was to introduce Western education, according to him. उन्होंने ये भी बोला कि जो लॉज लिखे थे, इस्लामिक लॉ और हिंदू लॉ संस्कृत में जो लिखे थे, उनको कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश लॉ. सो ही ऑल्सो फैसिलिटेटेड द राइटिंग ऑफ लॉज इन इंग्लिश. He completely wanted to close down Indian schools. जो ओरिएंटल स्कूल्स थे और जो ओरिएंटलिस्ट्स थे उनके हिसाब से बिल्कुल खराब थे, बैकवर्ड थे, उनको बंद हो जाना चाहिए. तो ये मकौले के सजेशंस थे. एक तो लिटरेचर कंप्लीटली वेस्टर्न, सेकेंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश, thirdly all money should be spent only on schools with English as the medium of language and teaching Western literature. All Oriental schools to be closed down or receive no money from this Charters Act. Religious education not to be taught, and all the laws to be translated in English. This was what he suggested. There is one very famous sentence, infamous rather I should say, by Macaulay. उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो आज भी चुभता है हम लोगों को जब हम ये पढ़ते हैं. वो ये कहते हैं कि a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. वो ये कह रहे हैं कि इंडिया और अरेबिया का जो पूरा लिटरेचर है वो एक यूरोप की जो छोटी सी एक शेल्फ है उसके बराबर है. मतलब जो छोटी सी, अगर हम एक यूरोप की छोटी सी एक शेल्फ की कुछ किताबें पढ़ लें, वो बेटर है इंडिया के पूरे लिटरेचर से. मतलब इंडिया का पूरा लिटरेचर उनको लगता है, इंडिया और अरेबिक कंट्रीज की पूरा लिटरेचर बोगस है, बैकवर्ड है, उससे अच्छा आप कुछ यूरोप की बुक्स की एक शेल्फ लाइब्रेरी से 2-3 बुक्स भी पढ़ लें, वो बहुत है, वो ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा मॉडर्न है. दिस वाज एन इंसल्ट दैट ही गिव, that he actually gave to he did to the Indian literature. This is a famous, infamous sentence said by Macaulay. उन्होंने और भी चीजें कही थी कि इंडिया में तो हम ऐसी नदियों की बातें करते हैं कि अमृत की नदियां हैं और इस तरह के रिचुअल्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं. उन्होंने सबको डिसरिस्पेक्ट शो करा था. अब क्या इफेक्ट हुआ मकौले के सजेशंस? मकौले's minutes basically has his suggestions in it.
So all these arguments were presented, all these arguments that Macaulay made, जो भी arguments उन्होंने बनाए वो विलियम बेंटिक के सामने प्रेजेंट किए और विलियम बेंटिक को बहुत पसंद आए ये सारे और उन्होंने इनको पास कर दिया और ये बन गया हमारा रेजोल्यूशन ऑफ 1835। अब ये जो है इसकी वजह से एक चीज आई वो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या हुआ, विलियम बेंटिक एक्सेप्टेड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मैकॉले and he announced an education policy. तो finally education policy आ गई, चार्टर्स एक्ट में भी suggestions थे, मैकॉलेज मिनट में भी suggestions थे और अब विलियम बेंटिक ने उसको educational policy बना दी। William Bentinck, he accepted all the arguments and he constituted an educational policy and hence everything became final, that all the literature would only be Western literature, all money will be given only to the institutions teaching Western literature, English will become the medium of instruction and no Oriental schools, that is original Indian schools, will get any money. इंडियन स्कूल्स को पैसे नहीं मिलेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पैसे मिलेंगे। तो ये फाइनल एजुकेशन पॉलिसी बन गई जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मार्च 1835। ये मैकॉले की वजह से आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अगेन मैं कहूंगी कि आपको याद रखना है, समझना है, downward filtration theory. So this is very important concept that you have to understand, keep it in your mind, that because of these events, the Charter Act, then the Anglicist Orientalist controversy, because of which Macaulay gave his suggestions, because of which a resolution was finally passed, because of all these happenings, there was something going on in the society. इन सारी चीजों की वजह से कुछ सोसाइटी में हो रहा था, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो इम्पैक्ट है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। दो लोग थे जिनकी मोटिव्स थे, एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन एजुकेशन हट जाए, उसकी जगह इंग्लिश एजुकेशन आए, वेस्टर्न एजुकेशन आए, ताकि ऊपर की जो क्लास है वो इंग्लिश बन जाए जिनको एजुकेशन मिल रही है और उनको देख देख के जो नीचे की क्लासेस हैं वो उनकी नकल करके भी इंग्लिश बन जाए और एक ऐसी क्लास बन जाए सोसाइटी में जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स की जैसी हो, उनकी जैसी बात करे, उनके जैसे कपड़े पहने, उनके जैसे फैशन बनाए, उनके जैसा खाए पिए, ताकि उनको देख के दूसरे इंडियंस इंफीरियर फील करें, ताकि इंडिया में ब्रिटिश की जैसे दिखने, ब्रिटिश के जैसे रहने वाले लोग बने लेकिन दिखने में वो इंडियन हो। ऐसा क्यों हो? ताकि वो ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करें, ब्रिटिश कल्चर को पसंद करें और कभी रिवॉल्ट ना करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उनको इतना पसंद करा दो इंग्लिश कल्चर, उनको इतना शौक लगा दो इंग्लिश होने का कि वो कभी इंग्लिश के अगेंस्ट ही ना जाए। उनकी कल्चर को खत्म कर दो, उनकी हेरिटेज को खत्म कर दो, उनको पूरा इंग्लिश बना दो और सबसे पहले क्या करो, अपर कास्ट को बनाओ। अपर कास्ट को इंग्लिश बनाओगे तो धीरे धीरे वो फिल्टर होके नीचे के लोगों को भी असर कर देगी। ऐसा आज की डेट में भी हम देखते हैं कि इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो एलीट क्लास है, जिनके पास कुछ तरह की गाड़ियां हैं, कुछ तरह की चीजें हैं, उनको देख के जो लोअर क्लास के लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है, वो इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उन ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की कि ऊपर की कुछ क्लासेस को ब्रिटिश जैसा बना दो, उनको इंग्लिश एजुकेशन दे दो, उनको वेस्टर्नाइज कर दो, उनको देख देख के बाकी जो लोअर क्लासेस है वो भी वेस्टर्नाइज हो ही जाएंगी और हमारी सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है वो दिखने में तो इंडियंस ही रहेंगे, दे विल रिमेन इंडियंस इन ब्लड एंड कलर। कलर मतलब रेसिस्ट स्टेटमेंट है ये, लेकिन उनका टेस्ट इंग्लिश हो जाएगा, उनको पसंद इंग्लिश चीजें आ जाएंगी, तो फाइनली क्या होगा, इंडिया में क्लासेस तो बनी जाएंगी, डिवाइड तो हो जाएंगे, वो ब्रिटिशर्स को कभी भगाएंगे नहीं, कभी उनके खिलाफ रिवॉल्ट नहीं करेंगे। ये स्ट्रैटेजी थी। सो दिस इज दी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज रिलीजन में करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि अपर क्लासेस को क्रिश्चियन बना दो, उनको देख के नीचे की क्लासेस अपने आप उनकी नकल कर करके क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मतलब ही ये है कि पहले अपर क्लासेस को टारगेट करो, उनको एलीट बनाओ, उनको ब्रिटिश जैसा बनाओ, उनको देख देख के नीचे की क्लास भी वैसी नकल कर करके बनने लगेगी, उनसे प्रभावित हो जाएगी, उनकी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, उनको कॉपी करेगी, तो ग्रेजुअली पूरी सोसाइटी ब्रिटिश जैसी हो जाएगी। लेकिन हमसे वो फिर भी अलग रहेंगे क्योंकि वो रेसिस्ट थे, क्योंकि वो काले लोग हैं, वो इंडियन लोग हैं, ब्राउन लोग हैं और वो इंडियन है, वो कलर और ब्लड में इंडियन रहेंगे लेकिन वो मेंटली
ब्रिटेन ब्रिटिश बनेंगे तो हमें कभी कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो मेंटली स्लेव बनाना चाह रहे थे इंडियंस को. That is the concept of downward filtration theory. So I would repeat it in English for all those who are following in English, that it has been seen that in our society, even now, the upper classes are copied by the lower classes. The ones who can afford certain kind of cars or items, or they have certain kind of lifestyle, the lower classes, they try to copy them. So this was something known to the Britishers and the missionaries. So what they tried to do, they tried to impart education. They decided that education be provided to the upper classes first, Christianity be spread to the upper classes first, they be taught about the Western literature, Western culture, so that they become an elite class. Now the lower class will try to copy that elite class and try to become like them. So ultimately, it is going to filter to the lower classes. Take the few upper classes, westernize them, and this westernization will percolate down, filter down to the lower classes. And ultimately, there will be different classes, a divided society in India, and these people will be Britishers in their thoughts. So, mental slavery is what they were trying to encourage by making them British in their thoughts. But still, they would remain Indian in their color and blood. This was a racist statement that very famously they have used. So that is what they wanted to do. They wanted to divide the society. They wanted to create a class called elite class that was much like the Britishers, still different, but like them in their thoughts. So basically, create a class of slaves, mental slaves, and this was so that Christianity spreads and the culture spreads, westernization spreads, and they never get a resistance from the Indians. So this was what was their motive, and this is what is regarded as the downward filtration theory. तो ये आपको पता होना चाहिए. अपना होल्ड बनाने के लिए भी था. होल्ड तो तभी बनेगा जब उनको प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा. प्रोटेस्ट तभी मिलेगा जब मेंटली हम स्लेव होंगे. जब हमें कोई पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा, दिमाग पे असर कर लेगा, तभी तो हम उसके खिलाफ कभी बोलते नहीं हैं. तो यही करने की कोशिश ब्रिटेन ने की. वो एजुकेशन के थ्रू कर रहे थे, और एजुकेशन के थ्रू अपना रिलीजन भी फैला रहे थे, अपना कल्चर भी फैला रहे थे. क्योंकि मकौले ने शुरू में ही कहा था, मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी, उसको ये समझ में आ गया था कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है, उसकी कल्चर बहुत स्ट्रांग है, उसकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है. तो इंडिया पे कब्जा करने के लिए उसकी मॉरल वैल्यूज को, कल्चर को खत्म करना पड़ेगा. उसके लिए वेस्टर्न कल्चर लाना पड़ेगा. वो एजुकेशन के थ्रू आएगी, और वो आएगी पॉलिटिकल पावर के थ्रू. आप पैसे ही मत दो. इंडियन स्कूल्स को पैसे ही नहीं दोगे तो इंडियन स्कूल्स ग्रो ही नहीं करेंगे. पैसे सिर्फ वेस्टर्न स्कूल्स को मिलेंगे, उन स्कूल्स को मिलेंगे इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं. तो ये सारी पॉलिटिक्स की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था. तो क्या क्या इसके इफेक्ट्स थे? एक तो स्लेवरी इनकरेज हो रही थी. हम इंडियंस ने ब्रिटिश जैसा सोचना, कपड़े पहनना, खाना पीना, ये सब शुरू किया. एक एलीट क्लास बननी शुरू हुई, और वो मेंटली स्लेव्स थी. और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि हम अभी भी बहुत चीजों में ब्रिटिशर्स को कॉपी करते हैं. वी स्टिल आर स्लेव्स. ओके. फिर इंडियन लिटरेचर को धीरे धीरे किस तरह से खत्म करना शुरू किया. They started disintegrating the Indian literature and Indian language by not giving money to those schools who were teaching Indian literature. The money was 1 lakh rupee sum was only supposed, after the Macaulay's Minute it was decided. Macaulay Minute के बाद ही डिसाइड कर लिया गया कि सारा पैसा उन स्कूल्स को ही जाएगा जो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, नॉट इंडियन लिटरेचर. तो इंडियन स्कूल्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे जब उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट से. पॉलिटिकल डिसऑर्डर भी हुआ है इसमें काफी. रिलीजियस मोटिव तो था ही क्रिश्चियनिटी को फैलाने का, और क्लासेस शुरू हो गई इंडिया में. अपर क्लास, लोअर क्लास. अपर क्लास जो ब्रिटिश जैसी थी अपने थॉट में, अपने खान पान में, एंड द लोअर क्लास व्हिच इज नॉट लाइक द ब्रिटिशर्स. और वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया जिसका इफेक्ट आज तक है. सो दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वर हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. तो ये आज का डिस्कशन था मेरा मकॉलेज मिनट. 3 चीजें मैंने इसमें आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस की हैं. तो चार्टर्स एक्ट के बाद की, सो वी हैव डिस्कस्ड 3 मेन थिंग्स आफ्टर आवर डिस्कशन ऑफ चार्टर्स एक्ट इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. वी हैव डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ चार्टर्स एक्ट, दैट वाज कंफ्यूजन अबाउट द टर्म्स. हमने उस चार्टर्स एक्ट में जो टर्म्स यूज किए थे उसकी वजह से जो कंफ्यूजन हुआ, और सबसे बड़ा इफेक्ट उसका क्या था? एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी. उसके बारे में बात की. 2 ग्रुप्स बन गए थे,
एक ग्रुप नहीं चाहता था वेस्टर्न एजुकेशन आए, एक ग्रुप चाहता था। तो इसमें इंडियंस भी थे कुछ दोनों ग्रुप्स में। तो ये एक पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा मकौले कैसे आया। देन वी स्टडीड हाउ मकौले एंटर्ड इंडिया, how he understood that India's cultural heritage was so powerful it had to be broken and only then it could be conquered. जब तक हम इंडिया के कल्चर को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ब्रिटिश नहीं राज कर सकती। ये मकौले की एंट्री होती है। वो अपने सजेशंस देते हैं कि सब कुछ इंग्लिश करो, सब कुछ वेस्टर्न करो, इंडियन स्कूल्स को बंद कर दो, पैसा नहीं दो उनको। उसके बाद विलियम बेंटिक इनके सजेशंस को मान लेते हैं और रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कि कैसे हमारी सोसाइटी में उन्होंने अपर क्लास को वेस्टर्नाइज करके धीरे धीरे कोशिश की कि सारी क्लासेस नीचे की भी उनसे प्रभावित होकर ब्रिटिशर जैसे बने। ब्रिटिशर जैसे तो वो कह रहे थे वो बन जाएंगे, लेकिन स्किन में और ब्लड में वो इंडियन रहेंगे। बट उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे, ब्रिटेन को कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और उनका होल्ड, ब्रिटेन का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। So all this was being done to consolidate the hold of British government in India. Because through education, by not giving money to the Indian schools, by completely cutting off financial aids to the Indian schools, by introducing Western literature, by introducing English as a medium of instruction, by introducing British culture, all the classes, all the people of India would start thinking like the British, and they would become slaves to the British government, and hence British government will get a class of people to work in the government offices, serve them, become their slaves, become their servants, and this will further strengthen the British hold in the country. These were the hidden motives. ये जानना बहुत जरूरी है हमारे। So that's all for today. We'll be taking up the Wood's Dispatch and the consequent events in the next video lecture. Stay connected, subscribe to my channel, keep liking my videos, and follow the sequence. All the best. Thank you.